Bismillahirrahmanirrahim, students. So we are going to discuss about the nucleus. Nucleus is the main and central portion of the cell and the last organelle of the cell, you can say. It is also called as the control house of the cell. Now why it is called as control house? Because most of the metabolic activities of the cell is controlled by the nucleus, or by the proteins, or by the messenger RNA sent from the nucleus, because it has the DNA material, it has the hereditary units or the genes which contain the genetic code, and that genetic code is sent towards the different ribosomes for the translation and for the synthesis of protein. So we can say that all the metabolic activities which are taking place inside the cell is controlled by the nucleus, because most of the messenger RNA are synthesized inside the nucleus and due to the presence of hereditary units that are called the genes. Okay. So first comes in discovery. It was discovered by the Scottish scientist Robert Brown, और कुछ जगहों पे आपको English scientist Robert Brown भी मिलेगा, ठीक है. Then occurrence से बेटा it is present in all eukaryotes, because actually the nuclear material is present in every type of organism. As मैंने जैसे आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी चीज़ के सेल होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट हो, यानी उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि उसमें हेरिडिटी प्रेजेंट हो, material present ho. So this hereditary material which is present inside the nucleus and enclosed in the nucleus, those organisms are called eukaryotes, and those organisms which have the hereditary material scattered in their cytoplasm in a specified region, that is called nucleoid. So these organisms are called prokaryotes. So we can say that true nucleus the karyon is present in all eukaryotes except the erythrocytes, that is the mature RBC. अब RBC में क्यों नहीं है? क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि RBC के अंदर जस्ट हीमोग्लोबिन स्टोरेज प्रोटीन होता है जो कि फ्री राइबोसोम से सिंथेसाइज्ड होता है और उसने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करनी होती है. सो इट डज नॉट नीड न्यूक्लियस एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी वेसिकल एक्सेट्रा, ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज एब्सेंट टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट या आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. Then position, it can be central, excentric or basic. अगर आप एनिमल सेल में देखें तो इट इज यूजुअली सेंट्रल, ठीक है. अगर आप इसको प्लांट सेल में देखें तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्जर वैक्यूल इट इज यूजुअली एक्सेंट्रिक, यानी अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड समटाइम इट इज बेसल दैट इज प्रेजेंट अलोंग द पेरिफेरी. लाइक कुछ आप मसल फाइबर्स में देखें तो दे आर प्रेजेंट अलोंग द पेरिफेरी और ऑन द बेसल साइड्स, ठीक है. Then beta we have the shape. Shape can be round, oval, flat, horseshoe, यानी इस तरह से सी शेप भी हो सकता है, किडनी बीन शेप भी हो सकती है, लोब भी हो सकते हैं. जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर लोब्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब कि इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है. सो इट कैन बी लोब्ड एज वेल. So then comes its numbers. Number can be 1, and usually one nucleus is present in every type of eukaryotes, ठीक है. But if the nucleus is 1 in number in a cell, then the cell is called mononucleate. And a common example is amoeba. You can write any type of the cell because all the eukaryotic cell have at least one nucleus and called as mononucleate. Then those cells which contain the two nucleus are called the binucleate, and the example is paramecium and hepatocyte. पैरामीशियम आपको पता है फ्रेश वाटर में होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, और जो आपके पास हेपेटोसाइट है ये लिवर के सेल्स हैं, इनमें न्यूक्लियस का नंबर 2 होता है, ठीक है. देन उसके बाद है पोलीन्यूक्लिएट. सो दो सेल्स विच कंटेन 3 to 100 न्यूक्लियस पर सेल्स, these are called polynucleated cells, and these polynucleated are osteoblasts, ये आपके मेच्योर बोन सेल्स हैं, और स्केलेटल मसल फाइबर इनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं. तो इट मीन्स के एक्टिविटी ऑफ द सेल्स के मुताबिक जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है. Then we get size. So the 10% of the cell volume is actually the size of the nucleus, और usually जो इसका diameter होता है वो 10 माइक्रोमीटर होता है. अब हर सेल का जो साइटोप्लाज्म का साइज है, यानी जितना बड़ा साइटोप्लाज्म होगा उतना उसका साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होगा, लेकिन अगर साइटोप्लाज्म का साइज कम है तो न्यूक्लियस का साइज भी कम होगा. सो वी कैन से दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द साइटोप्लाज्म. ओके, तो जाहिर सी बात है जितना साइटोप्लाज्म ज़्यादा है उतनी उसकी नीड्स ज़्यादा होंगी और उतना उसको कंट्रोल हाउस की ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसलिए द साइज ऑफ न्यूक्लियस वुड आल्सो बी इंक्रीज्ड. Then comes the ultrastructure of nucleus, यानी what lies inside the nucleus.
So first is the nuclear envelope. Nuclear envelope mean boundary of the nucleus. यानी अगर आप इस डायग्राम में देखें तो दिस इज द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है एंड दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन दिस न्यूक्लियर एनवेलप आर कॉल्ड यूकेरियोट्स. ओके, अच्छा, इसका रोल क्या है? इट सेपरेट द न्यूक्लियोप्लास्ट फ्रॉम द साइटोप्लास्ट. अगर ये आपका सेल है तो ये वाला जो फ्लूइड फिल्ड मटेरियल है इसको आप साइटोप्लास्ट कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड मटेरियल होता है उसको आप न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं. ठीक है, सो द बाउंड्री व्हिच लाइज बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लास्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. सो इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, यानी न्यूक्लियस को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि उसने किस शेप में होना है, एंड एक्ट एज अ बैरियर कि हर चीज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं हो सकती. अब देखिए आपके साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होती हैं, स्पेशली न्यूक्लियेसेस होती हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं या डिग्रेड कर सकते हैं. सो ये बैरियर जो है यानी न्यूक्लियर एनवेलप जो है इसका होना जरूरी है ताकि साइटोप्लाज्म से जो एंजाइम्स हैं वो डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर एंटर ना हो कि न्यूक्लियर मटेरियल या न्यूक्लियोप्लास्ट की डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाए. ठीक है, देन इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड ईच मेम्ब्रेन इज 7 to 8 नैनोमीटर थिक. यानी ये जो आपके पास एक मेम्ब्रेन है, इस एक मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 7 to 8 नैनोमीटर है. अब देखिए बेटा, जो आउटर मेम्ब्रेन है इट इज कंटिन्यूअस विद द RER. हमने RER की फॉर्मेशन में भी पढ़ा था कि ये इमर्ज होती है फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, while the inner membrane is smooth and it closes the nucleoplasm. ठीक है, then this nuclear envelope contain a specialized structures which are called nuclear pore complex, which are circular in shape, and these nuclear pore complex are actually the number of nuclear pores. यानी आपके पास अगर ये एक इन्वेलप है तो इस इन्वेलप के ऊपर यहाँ पे सर्कुलर कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको आप बोलेंगे न्यूक्लियर पोर्स. ठीक है, और ये न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं इनका रोल क्या होता है कि इनकी वजह से साइटोप्लाज्म में से जो भी मटेरियल नीडेड है न्यूक्लियस में वो इन आएगा और जो साइटोप्लाज्म को नीड है वो यहाँ से आउट होगा. ठीक है, सो इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लास्ट. So these pores are made up of up to 30 nucleoporine proteins. यानी ये जो एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आपको नजर आता है एक्चुअली इसके अंदर 30 न्यूक्लियोपोरीन प्रोटीन्स होती हैं जो कि ऐसे अरेंज होती हैं कि आपके पास एक सर्कल या स्फेरिकल बन जाता है. ठीक है, और ये अराउंड अबाउट 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर डायमीटर का होता है. ठीक है, रोल आपको समझ आना चाहिए कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बाउंड्री का काम करता है और जो न्यूक्लियर पोर्स हैं वो मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लास्ट. अब जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स हैं दैट आर कोरिलेटेड विद द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स. ठीक है, यानी कितना चीजें जो है वो रिक्वायर्ड है सेल से बाहर, और सेल से बाहर ज्यादातर जो चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो मैसेंजर RNA होता है या राइबोसोम्स होते हैं. ठीक है, सो नंबर ऑफ द पोर्स इंक्रीज होंगे जब आपके सेल की एक्टिविटी इंक्रीज होगी. सो अगर आप RBC में देखें और लिवर में तो ये दोनों जो है दीज आर द डिफरेंशिएटेड सेल्स. डिफरेंशिएटेड सेल्स आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो होते हैं जिनको रोल असाइंड हो जाता है. अब आपको पता है लिवर के सेल्स हेपेटोसाइट्स का अपना रोल है और RBCs का अपना रोल है. सो दो सेल्स व्हिच आर डिफरेंशिएटेड मींस व्हिच हैव स्पेसिफाइड फंक्शन दे हैव यूजुअली लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने फंक्शन के लिहाज से तो उसको गेन करना है. ठीक है, अच्छा, ये जो 3 to 4 पोर्स हैं और हम RBC की बात कर रहे हैं तो आपने याद रखना है दिस इज नॉट अ इरेथ्रोसाइट, दिस इज इरेथ्रोब्लास्ट. अच्छा, इरेथ्रोब्लास्ट जो होता है वो इमेच्योर RBC होता है जिससे न्यू RBCs इमर्ज होते हैं या वो डिफरेंशिएट हो जाता है फिर RBC के अंदर या मैच्योर RBC में. ठीक है, अच्छा, अब जो लिवर है उसमें 15 to 20 होंगे एंड एग इज अनडिफरेंशिएटेड. देखिए, एग से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है तो इट मींस एग से बहुत सारे सेल्स बनेंगे. ठीक, एज एग इज अ यूनिसेल. सो उस यूनिसेल को अगर आप देखें तो वो अनडिफरेंशिएटेड होगा एंड दैट हैज मेनी नंबर ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द मटेरियल आर नीडेड टू बी एक्सचेंज बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, देन न्यूक्लियोप्लाज्म व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर सैक. Cell sac is actually the cytoplasm and the nuclear sac is the nucleoplasm of nucleus, or it is also known as karyolymph. Karyo का word जो है ये यूटिलाइज्ड होते हैं न्यूक्लियस के लिए.
लिए, ठीक है। सो बेटा इट इज ट्रांसपेरेंट, सेमी सॉलिड एंड ग्रेनुलर। देखिए आपने न्यूक्लियस नहीं सॉरी साइटोप्लाज्म के लिए आपने टर्म यूज की थी कि वो ट्रांसपेरेंट होता है और फ्लूइड होता है, ठीक है, साइटोसोल होता है। यहाँ पे आपने याद रखना है दिस इज सेमी सॉलिड क्योंकि इट कंटेन्स द सॉलिड सब्सटेंसेस इनसाइड इट, ठीक है। देन इट इज स्लाइटली एसिडोफिलिक, तो जो जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर या न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर जितना भी कंटेंट होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक लविंग होता है, इसलिए आप न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक। Then it contain the nucleic acid, so all type of the nucleic acid, whether it is DNA or RNA, it is present inside the nucleus. प्रोटीन्स हैं, यूजुअली जो हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, दीज आर द बेसिक प्रोटीन्स विच आर हिस्टोन्स। देन एंजाइम्स आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए प्रेजेंट होते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, उसके लिए आपको ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम्स चाहिए। अगर डीएनए रेप्लिकेशन होनी है तो उसके लिए आपको रेप्लिकेशन के एंजाइम्स चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लास्ट। देन लिपिड्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस इसके भी होते हैं कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन मिनरल्स हैं, सो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बट ये मिनरल्स क्योंकि ये यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं एज अ कोफैक्टर या फिर कोई ना कोई मटेरियल बनाने में, ठीक है। और फाइनल जो है वो हमारे पास क्रोमैटिक मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियोप्लास्ट में, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस क्या होते हैं? सो दीज आर डार्कली स्टेन्ड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियोप्लास्ट, ठीक। अगर आप ये वाला एक स्ट्रक्चर देखें जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो दिस इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। एंड न्यूक्लियोलस जो होता है ये आपके पास प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियोप्लास्ट। इसके नंबर बी आपके पास डिपेंड करती है एक्टिविटी ऑफ सेल के ऊपर। क्यों बेटा? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था राइबोसोम्स के टॉपिक में कि राइबोसोम की सिंथेसिस जो है दैट अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस। सो हम ये कह सकते हैं कि if the requirement of the ribosome is enough or larger, then you can say the number of nucleolus will also increase, ठीक है। So those cells which produces proteins or those cells which makes proteins, they have the larger number of nucleolus because they have to make the ribosomes here. Then इसके टू पार्ट्स होते हैं, पेरिफेरल एंड सेंट्रल। जो पेरिफेरल पार्ट होता है, आपको पता है कि अगर हम इसको यूं ड्रॉ करें तो जो आपके पास पेरिफेरल यानी ये वाला पेरिफेरल एंड आएगा और ये वाला सेंट्रल पोर्शन आएगा, ठीक है। सो पेरिफेरल को पार्स ग्रेनुलोसा कहते हैं। इसको पार्स ग्रेनुलोसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दीज ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स आर राइबोसोम्स, ठीक है। सो राइबोसोमल सब यूनिट्स की प्रेजेंस की वजह से इसका जो पेरिफेरल रीजन है दैट इज पार्स ग्रेनुलोसा आर ग्रेनुलर इन नेचर, ठीक। एंड द सेंट्रल रीजन इज पार्स फिब्रोसा। फिब्रोसा टर्म फिब्रिल लाइक होती है, तो इट मींस कि इट इज अ थ्रेड लाइक, इट कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे जो आपके पास मटेरियल प्रेजेंट होता है बेटा वो आपके पास क्या क्या हो जाएगा? डीएनए, वो डीएनए कंटेंट जिन्होंने आरआरएनए बनाना है, सो आरआरएनए बनेगा इससे, ठीक। तो ये दो जो मेन चीजें हैं ये आपके पास प्रेजेंट होंगी इनसाइड द सेंट्रल रीजन और पार्ट्स फिब्रोसा में, ठीक है। सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोलस एज वेल। देन रोल ऑफ द न्यूक्लियोलस, सो इट इज द साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस। आरआरएनए आपको पता है राइबोसोमल आरएनए है और जब उसके साथ प्रोटीन्स अटैच होते हैं तो वो राइबोसोम्स बना देते हैं। सो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स जो है वो राइबोसोम्स बनाते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। Then the last part is present inside the nucleus, that is the chromosomes. अब क्रोमोसोम्स को आप क्रोमोसोम्स तब कहते हैं जब आप सेल डिवीजन के टाइम पे होते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका सेल नॉन डिवाइडिंग है तो आपके सेल के अंदर इस तरह से थ्रेड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको आप क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं या क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमैटिन मटेरियल आपको पता है कि एस फेज में जाता है तो डबल हो जाता है। उसके बाद आपने पढ़ा था कि प्रो फेज में जब आता है सेल डिवीजन के दौरान तो वो अपनी कंडेंसेशन स्टार्ट करता है। सो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये जब कंडेंस होना शुरू होगा तो फिर इससे इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जिसको आप क्रोमैटिड्स कहेंगे, ठीक है। देन सो हम ये कह सकते हैं क्रोमैटिन मटेरियल आर द क्रोमैटिन फाइबर्स will condense to form the chromatids and chromatids will combine together to form the chromosomes, ठीक। अब ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखें बेटा तो इट इज द कंडेंस स्ट्रक्चर। अब ये जो कंडेंस स्ट्रक्चर है ये ड्यूरिंग कंडेंसेशन ऑफ इन प्रोफेज हुआ है, क्रोमैटिड्स बने हैं। तो ये दो जो आर्म्स हैं अलग अलग इनको आप क्रोमैटिड्स कहेंगे एंड दीज क्रोमैटिड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द क्रोमोसोम। अब हम यूं कह सकते हैं कि दीज आर द हैप्लॉइड सेल्स और अगर आप इस फॉर्म में ले आए तो ये आपके पास डिप्लॉइड हो जाता है, ठीक है।
देन जो क्रोमोसोम्स हैं these are composed of nucleotides and nucleotides in turn are composed of DNA and histones. ठीक, अब आपने याद रखना है कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन बेसिक अमाइनो एसिड से बनी हुई होती हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. सो बोथ द डीएनए एंड हिस्टोन विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म अ बीड लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस. तो इस जो बीड लाइक स्ट्रक्चर बनता है हिस्टोन और डीएनए की वजह से, इसको आप कहते हैं न्यूक्लियोसोम, नॉट न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, देन आपके पास आता है क्रोमैटिन फाइबर्स. ये कंडेंस होता है डिवीजन के दौरान, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को देखें तो आपने याद रखना है कि ये टू आर्म्स जब कंबाइन होंगी या टू क्रोमैटिड्स जब कंबाइन होते हैं बाय मीन ऑफ काइनेटोकोर, तो आप इसको क्रोमोसोम कहते हैं. और क्रोमोसोम्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसमें ये दो आर्म्स आपको नजर आ रही हैं, एक अप साइड पे और एक डाउन साइड पे. जो ऊपर वाली आर्म होती है उसको पी आर्म कहते हैं और सेंट्रियोल से नीचे वाली जो सेंट्रोमेयर से जो नीचे वाली आर्म होती है उसको आप बोलते हैं क्यू आर्म. ठीक है, और इनके सेंटर में सेंट्रल रीजन होता है जिसको आप सेंट्रोमेयर कहते हैं. सेंट्रोमेयर वो रीजन है जिसके साथ स्पिंडल apparatus या आप ये कह सकते हो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं. ठीक, देन हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी हैप्लॉइड एंड इट कैन बी डिप्लॉइड. अगर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो दीस आर प्रेजेंट इन अ टाइप ऑफ सेल्स व्हिच आर कॉल्ड जर्म सेल्स. ठीक है, एंड जर्म सेल्स के लिए हम नॉर्मल जो टर्म यूज करते हैं दीज आर गैमेट्स. यानी अगर आप इन ऑर्गेनिज्म के एग और स्पर्म में देखेंगे तो आपको हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नजर आएंगे. हाफ का मतलब क्या है कि उसमें टू यूक्रोमैटिड्स कंबाइन नहीं होंगे, दीज आर सेपरेटली प्रेजेंट. सो आप उसको हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं. ठीक है, सो एग्जैक्ट हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड हैप्लॉइड एंड इट्स टू कॉपीज आर नोन एज डिप्लॉइड. ठीक है, अगर हम मैन में देखें या ह्यूमन में देखें तो हमारे पास जो सोमैटिक सेल्स होती हैं यानी जो हमारे बॉडी के सेल्स होती हैं उनमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 46. और अगर हम ह्यूमन के एग और स्पर्म में देखें तो उनमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे. ठीक है, फिर एग एंड स्पर्म 23 की फ्यूजन होती है और दोबारा जो बॉडी का जायगोट हमारे पास बनता है तो वो 46 क्रोमोसोम्स के साथ ही बनेगा. ठीक, देन उसके बाद बेटा हमारे पास फ्रॉग है, 26 डिप्लॉइड है और 13 उसमें हैप्लॉइड है. सो अनियन में 16 डिप्लॉइड हैं और 8 हैप्लॉइड हैं. इसके अलावा भी आपकी बुक में टेबल में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, आप कुछ को याद रखिएगा, बल्कि सबको याद करें क्योंकि एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं. ठीक है, देन हमारे पास इसी क्रोमोसोम्स की टाइप्स हैं. इसके कुछ रीजन्स को हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं और कुछ रीजन जो होता है उसको यूक्रोमैटिन कहते हैं. ठीक है, हेट्रोक्रोमैटिन जो है, जैसे आपके पास ये सेंट्रोमेयर का रीजन है, दिस इज द हाईली कंडेंस्ड रीजन. कंडेंस का क्या मतलब है, देखिए आपका ये एक सिंपल पार्ट है तो इसको मैं नॉन कंडेंस कहूंगी या लेस या डिफ्यूज कहूंगी. ठीक है, लेकिन अगर वो इस तरह से बीड लाइक स्ट्रक्चर यूं बना दे तो दिस बिकम्स द हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर. सो अगर ये कंडेंस स्ट्रक्चर है तो इस कंडेंस स्ट्रक्चर को डार्कली स्टेन किया जा सकता है और ये इनएक्टिव होगा. इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि ये जो कंडेंस स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है. तो ये जितना ज्यादा कंडेंस्ड होगा उतना वो पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव होगा, मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा. सो इट इज इनएक्टिव बट ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव. ठीक है, सो दैट पोर्शन इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमैटिन. और आपको याद रखना है कि सेंट्रोमेयर में जो पोर्शन होता है उसको हेट्रोक्रोमैटिन ही कहते हैं. और दूसरा यूक्रोमैटिन है, तो इसके जो आर्म्स का पोर्शन है इट इज स्लाइटली डिफ्यूज, यानी ये बहुत कंडेंस नहीं है. सो इसलिए आप इसको यूक्रोमैटिन कहेंगे एंड इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यानी जितने भी हमारे प्रोटीन्स बनते हैं वो यूक्रोमैटिन से बनते हैं. नाउ कम्स द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. ओवरऑल अगर आप फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस देखें तो वो क्या है कि न्यूक्लियस जो है वो अपने अंदर ऐसे मटेरियल्स को रखता है जो कि उसके हमारे बाकी सेल्स को के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. सो इट इज द स्टोर हाउस ऑफ मेनी ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल्स. देन इसमें जो है वो न्यूक्लियर पोर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लास्ट. उसके अलावा न्यूक्लियोलस है व्हिच इज द साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस. Chromosomes हैं which contain the hereditary material and involves in the protein synthesis as well as DNA replication and hereditary transmission. So all of these are the characteristic of the function of the nucleus, and that was about nucleus. Have a nice day. Allah Hafiz.